خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ساتھیوں اس وقت موجود ہیں بونیار میں ہوں ناروا والا اور آپ دیکھ رہے ہو ناروا لٹری سوسائٹی، اور میرے ساتھ اس وقت جو بزرگ موجود ہیں ان کا نام حیدر علی جیسوال ہے۔ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے ان کی حالات زندگی کے حوالے سے، چونکہ جیسوال صاحب جو ہیں یہ پوسٹ آفس میں بھی انہوں نے بہت وقت تک اپنا ڈیوٹی جو فریضہ انجام دیا ہے۔ آئے جانے ان کی آبا و اجداد اور یہ کیسے بنیار میں بس کے اور ان کے پرکھوں کے بارے میں بھی اس ریکارڈنگ میں جاننا چاہیں گے۔ استقبال ہے آپ کا ناروا لٹری سوسائٹی پہ۔ جی ہاں، خوش آمدید کہتا ہوں میں ان کو۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں، آپ کب کہاں پیدا ہوئے؟ میں بنیار میں پیدا ہوا ہوں۔ کس نام سے ہیں؟ حیدر علی جسوال۔ آپ کے پاپا کا نام؟ عبداللہ خان جسوال۔ تو آپ کے جو پرکھ جو تھے، آبا و اجداد جو تھے، کیسے یہاں پہ کشمیر میں آ کے بس؟ وہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے وقت میں یہاں آئے ہیں۔ تو کیسے آنا ہوا ان کا؟ وہ فوج میں تھے، ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، پھر وہ یہاں آ کر بس گئے۔ ہمیرا سنگھ کے نام پر وہ یہاں بسے ہوئے ہیں بنیار میں۔ جی جی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں اسلام قبول کیا تو پھر محمد صدیق ان کا نام رہا۔ جی۔ تو ان کی پھر چوتھی جو پشت ہے وہ ہماری ہے۔ ابتدائی دور سے بتائیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور اس وقت اس کے بعد آپ نے سکولنگ وغیرہ کیسے کیا ہوئے؟ بچپن سے ہی میں جب کوئی 5 سال کا ہو گیا تو مجھے سکول بنیار پرائمری سکول میں داخل کیا۔ تو یہ تھا میرے سکول داخل ہونے کا جو ٹائم تھا، یہ تھا 1946۔ ایک سال بھی، دوسرے سال جب میں سکول جاتا تھا تو 47 میں ریڈ آ گیا، قبائلی ریڈ۔ پھر ہمیں یہاں سے بھاگ کر سری نگر جانا پڑا۔ تو سری نگر ہم وہاں پر رہے سرائے بالا میں، حضوری باغ کے اس طرف ہے سرائے بالا ایک جگہ کا نام، وہیں ہم رہتے تھے۔ میرے بھائی صاحب فوج میں تھے تو انہی کی بدولت ہم سری نگر میں جا کر ٹھہرے۔ آپ کے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں تھے، کون سے فوج میں تھے اس وقت؟ اس وقت وہ تھے 4th کشمیر میں۔ 4th کشمیر؟ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج تھی اس وقت 4th کشمیر، جس کو بعد میں ملیشیا بنایا گیا۔ تو یہ کتنے سال آپ سری نگر میں رہے تھے؟ تقریباً 4-5 سال رہا میں سری نگر۔ اس کے بعد پھر واپس آ گئے ادھر آبائی گاؤں میں آ گئے، کیونکہ میرے والد صاحب زیادہ وقت سری نگر میں نہیں رہے، وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ وہ پہلے ابتدائی دور میں وہ فوج میں تھے، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن دیا تو وہ پھر جنگلات میں چلے گئے۔ جنگلات میں وہ رینج آفیسر تک انہوں نے ترقی کی۔ تو تقریباً 80 سال کی عمر میں یا 82 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ جب پوسٹ آفس میں آپ بھرتی ہو گئے تو کتنے سال کے تھے اس وقت؟ پوسٹ آفس میں جب میں بھرتی ہوا تو میں تقریباً، مجھے یہ ایسے صحیح یاد نہیں ہے، کوئی 20-22 سال کی عمر تھی میری۔ تو کیسے ریکروٹمنٹ پالیسیز کیسے کیا رہتی تھی اس وقت؟ پوسٹ آفس میں چلا گیا تو وہاں پر برانچ تھی ادھر میرے ہمسائے میں، تو میں برانچ پوسٹ ماسٹر تعینات ہوا وہاں۔ تقریباً 28 سال میں نے پوسٹ آفس میں کام کیا ہے۔ 28 سال کے بعد پھر میں ریٹائر ہو گیا وہاں سے۔
रिटायरमेंट के बाद आप घर पे ही हैं? जी हाँ, घर पे ही हूँ फिर मैं। तो इतने समय में आपने मस्जिद में वैसे तो इमामत में इमामत का इंजाम देता था मैं। इमामत के तकरीबन ड्यूटी के दौरान भी मैं इमामत करता था, तो उसके बाद भी फिर मैं इमामत ही करता रहा। तो आज कुछ 10-15 साल हो गए कि फिर मैं बड़ी मस्जिद से आकर इधर अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही हूँ। बड़ी मस्जिद मतलब? बड़ी जामे मस्जिद थी पार बुनियार में। बुनियार में? जी हाँ, बाज़ार में जो इस वक्त भी है जामे मस्जिद, जी, उसमें मैंने काफ़ी साल इमामत की है। आपने बात की कबायलियों की, जो 47 में कबायली रेडर्स आ गए थे। जी हाँ, तो कैसा माहौल था उस वक्त? और अमन था यहाँ पर। कबायली अचानक आ गए, हाँ, तो यहाँ उन्होंने सिविल के साथ कुछ छेड़खानी नहीं की। जी जी। तो लेकिन यहाँ पर हमारी इधर महाराजे की फ़ौज थी कुछ इधर मंदिर में, जी जी मंदिर पर वो ठहरे हुए थे। जी। उनके साथ उनकी कोई मारपीट हो गई। तो बाद में फिर वो उसके बाद फिर रेड आ गया 47 का। तो वही बाद में ये मसला खड़ा हो गया कश्मीर का। बुनियार के बारे में बताएं थोड़ा। आप कह रहे थे कोई बुनियार में खार बुनियार है। हाँ, बुनियार में है। बुनियार के हैं 3 ये इसके क्या कहते हैं इसको हिस्से। जी जी। एक हिस्सा है खारपुरा जी। एक हिस्सा है मंदिर बुनियार जी। एक हिस्सा है हमन बुनियार जी। एक हिस्सा है बुनियार बाला। तो उस वक्त का आप जैसे आपने कहा श्रीनगर में आना जाना था या बारामूला भी आना जाना होगा आपका, तो कैसे क्या यहाँ से कैसे जो लोगों का आना जाना होता था? उस वक़्त बसें बहुत कम चलती थी। पहले जिस वक़्त मैंने देखा एक बस चलती थी श्रीनगर से ऊड़ी तक, जी, सिर्फ एक। वो सुबह आती थी, शाम 4 बजे वापस चली जाती थी। किराया कैसे क्या चलता था? किराया उस वक़्त 4 आने थे यहाँ से बारामूला तक। 25 पैसे, जो आजकल 25 पैसे हैं, उस ज़माने में 4 आने होते थे। जी। फिर बढ़ते बढ़ते ये 8 आने हो गए। जी। फिर 1 रुपया हो गया। जी। तो उसके बाद फिर बढ़ता ही गया। तो आज की तो बात ही कोई नहीं है, आज तो 30 रुपये हैं। अच्छा, आपने जो ये टर्बन पहना है, दस्तार जिसको बोलते जी हैं हाँ। कश्मीरी में, तो ये कब से पहना है आपने? मैं जब से मैं स्कूल जाने लगा, मैं तकरीबन 5 साल का था, तो मैंने ये दस्तार बांधा हुआ है। 5 साल से मैं 5 साल की उम्र से मैं इस वक्त तक ये बांधता हूँ बस। तो क्या इसकी क्या अहमियत क्या है? ये हमारा ख़ानदानी एक पहनावा है। जी। हमारे जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो यही दस्तार ही बांधते थे। तो कैसे देखते हो आप आज के दौर में, आज के जो नौजवान जो है, उन लोगों का अभी थोड़ा रवैया बदल गया अपने कल्चर को लेके? कल्चर काफ़ी बदला। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कल्चर बदला हुआ है उनका, उन्होंने बदला दिया कल्चर अपना। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। तो मैं अपने कल्चर पर हूँ। मैंने कोई तब्दीली नहीं लाई अपने रहन सहन में। तो बहुत अच्छा चलता है। गांव वालों के साथ भी बड़ा अच्छा रहन सहन है, उठना बैठना है, बहुत अच्छा है। अच्छे रवाबित हैं हमारे आपस में। श्रीनगर में आप कह रहे थे मीर शाह साहब के बारे में? जी हाँ, वहाँ तो मेरा उनके साथ कैसे रूहानी ताल्लुक़ है उनके साथ। पहली मुलाकात कैसे क्या हुई आपको? उधर ऐसा हुआ कि वहाँ हमारे उधर रिश्तेदार जो थे उनके पास जाते थे। तो मैं भी एक दफ़ा चला गया उनके पास। तो जाने के बाद फिर उनके साथ मेरे थोड़े रवाबित बढ़ गए। जी। तो जिसकी वजह से फिर वो उनको हमने अपना पीर मुर्शिद बना लिया। बस वही तरीका। कोई वजीफ़ा वगैरह उन्होंने दिए थे क्या? हाँ, दिया कुछ थोड़ा बहुत। वही चलता है इस वक्त तक। अभी इस वक्त कितने साल के हैं आप? जी, इस वक्त मैं तकरीबन
84 84 साल उम्र है तो मेरी। कैसे देखते हो आप अपने पूरे जितने भी जो 80-83 साल को कैसे देखते हैं आप इस वक्त? कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हो हमारे जो इस वक्त हमें नौजवान जो देख रहे हैं? जी हाँ, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज उनके अपनी लिए पूरी ये है, ज़िंदगी में क्या आपने सीखा आपने? देखो ज़िंदगी में मैंने ये सीखा कि आदमी को सदाकत पर रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके सादा ग़ज़ा खानी चाहिए हाँ, और सादगी इख्तियार करनी चाहिए। उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती है, कोई बदलाव करना नहीं पड़ता है। आज एक तरीका करेंगे, कल दूसरा करेंगे, परसों तीसरा करेंगे, वो नहीं होता है। एक तरीका है तो बस वो काफ़ी है। ज़्यादा हमें बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका किसके ज़्यादा असरात है आपकी ज़िंदगी में? कोई शायर या कोई ऐसा पर्सन, या कुरान के हवाले से आप कह रहे हैं कि बहुत समय तक आप? हाँ, कुरान पाक का तो सबसे बुलंद बाला मर्तबा है जी, उसके ऊपर तो कोई है नहीं है किसी का। लेकिन उससे उर्दू में देखा जाए तो उल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं जी, उनका शायराना तरीका जो है वो मुझे बहुत पसंद रहा। जी जी। कोई एक आधा शेर जाते सुनाए अल्लामा इकबाल का, कोई एक आधा शेर याद आ जाना चाहिए इस वक्त, किसी वक्त याद आ जाता है आदमी को अपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये एक उल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मेरी ज़बान पर आया। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई मैसेज दे सकूँ, मैं खुद एक बहुत कम पाया आदमी हूँ। ये तो ऊंचे लोगों का काम है कि मैसेजें देनी लोगों को। जी तो जो खुफ्ता कह शिवद बेदार, सोया हुआ बेचारा क्या सोए हुए को जगाएगा। तो लिहाजा बहरहाल इतना भी काफ़ी है अगर अल्लाह ताला कबूल करे। आपका आना जो है मैं इसका बड़ा मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ मैं कि आपने यहाँ आकर मेरे जैसे एक नाफहम आदमी के साथ आपने इतना वक़्त लगाया। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। आपका भी शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया आपने मुझे। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।